નવનાથ ધામની પાવન ભૂમિ પર વિરાજમાન બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી સાની દાદાના ચરણોમાં મારા સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ. દેદીપ્યમાન વિશ્વવંદનીય પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાના ચરણોમાં મારા કોટી કોટી નમન. પ્રદોષ પર્વના આજના ગુરુવારની શરૂઆત આપણે પરમ પૂજ્ય શ્રી છોટે દાદાના સ્વાગતથી કરીશું. આજનો ભંડારો અમરોલી સત્સંગ મંડળ અને મીનાક્ષીબેન મૈસુરા તરફથી છે, તો એમને નમ્ર વિનંતી છે કે સ્ટેજ પર ઉપસ્થિત થાય અને પૂજ્યશ્રીનું સ્વાગત કરે. તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈશું. સામે જોજો, સામે સામે ત્યાં. હા ભાઈ, જિગ્નેશ. હા હા, અહીંયા આવી જાઓ. ફોટો પડાવેલો પહેલાં પગે પછી રાખજો બેન. અહીંયા ઉભા. દૂરથી પગે લાગજો. આ બાજુ આવી ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. આપણે સૌએ અમર દિવસનો અલૌકિક અવસર ખૂબ ધામધૂમથી ઉજવ્યો. બ્રહ્મલીન પરમ પૂજ્ય શ્રી સાને દાદા અને પૂજ્યશ્રીનો દીક્ષા દિવસ, અને તે દિવસે પણ યોગાનો યોગ શનિવારનો સુંદર યોગ હતો. અને આપણે સૌ યુટ્યુબ પર શ્રી સાનેનાથ બાણીનું શ્રવણ કરીને ભાવવિભોર પણ થયા. ટૂંક સમયમાં મે મહિનામાં શ્રી સાનીનાથ બાણી આપ યુટ્યુબ પર નિહાળી શકશો. અને સૌ નાથ ભક્તોએ અને ઘણાએ તો નવો મોબાઈલ લઈને યુટ્યુબ પર શ્રી સાનીનાથ બાણીનો શ્રવણ કર્યું અને ખૂબ જ સારી માત્રામાં પ્રતિસાદ મળ્યો. એટલું જ નહીં, યુટ્યુબે પણ આપણાને મેસેજ મોકલ્યો કે તમારો આ વિડીયો તો 3 ગણો વધારે લોકો જોઈ રહ્યા છે. તો ખૂબ જ સુંદર વાત કહેવાય. એકવાર તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાવી લઈએ. આપણા સૌનો આટલો સારો પ્રતિસાદ, તો જેની પણ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તે અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો. ઓફિસના ટેબલની બાજુમાં આપણે એના માટે એક કાઉન્ટર પર ગોઠવ્યું છે, જેના પર આપણે 2 એન્જિનિયરને બેસાડીશું. તો જેની પણ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તેઓ એ કાઉન્ટર પર જાય અને પોતાની ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરાવી લે. હવે તારીખ 8/5/2022ના રોજ શ્રી ગોરક્ષ મચ્છેન્દ્ર મહાદેવ મંદિરનો શિલાન્યાસ સમારોહ છે. પત્રિકા ટૂંક સમયમાં આપ સૌને પહોંચાડવામાં આવશે. દરેક સત્સંગ મંડળમાં ફરીને બધાને પત્રિકા આપવાની છે અને જણાવવાનું છે કે બને ત્યાં સુધી આ સમારોહમાં ફરજિયાત આવે. શિલાન્યાસ સમારોહમાં ભંડારાના આયોજનમાં પણ આપ નામ નોંધાવી શકો છો. શિલાન્યાસ પૂજામાં બેસવું હોય તો એના માટે પણ જે રકમ નક્કી કરી છે એ આપ ઓફિસના કાઉન્ટ પર જમા કરાવી પોતાનું નામ શિલાન્યાસ પૂજામાં નોંધાવી શકો છો. બીજું, શ્રી ગોરક્ષનાથ, શ્રી મચ્છેન્દ્રનાથ, હનુમાનજી, માતાજી, નંદી, કાચબોની મૂર્તિ મંદિરમાં સ્થાપવામાં આવશે. તો એના માટે પણ આપ પોતાનું યોગદાન નોંધાવી શકો છો. એનું જે પણ રકમ જમા કરાવવાની હશે
એ પછીથી જાહેરાત કરવામાં આવશે, પરંતુ અત્યારે આપ નોંધાવી દો તો જ્યારે પણ એ રકમ જાહેર કરવામાં આવે ત્યારે તમને સૌથી પહેલાં જાણ કરવામાં આવશે. તો આ અમૂલ્ય તક આપણે અવશ્ય ઝડપી લઈએ. અન્ન ક્ષેત્રે યોગદાન આવ્યું છે. ઉલ્પેશભાઈ ગામિત સોનગઢ 10 કિલો શેરડી, શ્યામકાંત પાટીલ નવસારી 30 કિલો તુવર દાળ 10 કિલો ખાંડ, ભરતભાઈ પટેલ મસાળ 30 કિલો કોબી, ભારતીબેન રમેશભાઈ પટેલ આમરી 10 કિલો ચોખા, દક્ષાબેન હરીશભાઈ પટેલ ડુમલાવ 10 કિલો ચોખા 1 કિલો દાળ, રમીલાબેન અરવિંદભાઈ પટેલ અંબેટી 10 કિલો ચોખા, જીતેન્દ્રભાઈ રમેશભાઈ પટેલ અંબેટી 10 કિલો ચોખા, ગંગાબેન પટેલ અંબેઠી 10 કિલો ચોખા, નૈનાબેન પટેલ 10 કિલો ચોખા, ઉત્તમભાઈ કીકાભાઈ 10 કિલો ચોખા, કાંતાબેન પટેલ 12 કિલો ચોખા. તો સૌ દાતાશ્રીનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હવે આજના પાવનદિને પરમ પૂજ્ય શ્રી છોડેદારને નમ્ર વિનંતી છે કે એમની વિચાર ગંગા પ્રવાહિત કરે. જય અવધૂત. आदिनाथाय विद्महे ब्रह्मज्योतिस्वरूपाय धीमहि तन्नो आदिगुरु प्रचोदयात्. ॐ चैतन्य आदिनाथाय नमः. ॐ जय जगन्नाथ, जय शंकर शाश्वत, जय सुराधक्ष, जय जय सुरार्चित. अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय. नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त. अलख निरंजन. आदेश आदेश आदेश. हम सबके हृदय में तथा हमारे जीवन में हमें ज्ञान प्रदान करने वाले, हमारे जीवन को मोक्ष की गति देने वाले तथा जिनकी कृपा से हम सदा अखंड आनंद में निर्मग्न होने वाले, ऐसे हमारे सद्गुरु श्री सान्यानाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन. आज के प्रदोष काल के पावन गुरुवार पर भगवान महादेव, भगवान सदाशिव, भगवान जगन्नाथ एवं देवादिदेव आदिनाथ के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन. और जो भी नाथ भक्त हर गुरुवार की विचार गंगा का दर्शन और श्रवण फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं, ऐसे सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी नाथ भक्तों को मेरा जय अवधूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश. भगवान शिव आदि देवता है. सभी जीवों की उत्पत्ति और सभी जीवों का लय भगवान शिव के चरण में ही होता है. इसीलिए जो भक्त भगवान शिव की आराधना करता है उसे भगवान शिव
मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान शिव की जो भक्त आराधना करता है उसके जीवन में जन्म मरण के फेरे यानी पुनरुपि जन्मम पुनरुपि मरणम के जो भी मनुष्य जन्म के फेरे हैं वो मिट जाते हैं। और इसीलिए शायद ऐसा कहा है कि जो जीव भगवान शिव की आराधना करता है वो मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए मोक्ष की दिशा में वो गति कर लेता है। इसीलिए भगवान शिव को अनेक अनेक नामों से पुकारा जाता है। हमारी हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में जितने भी देवी देवता हैं उन सभी देवताओं में सबसे ज़्यादा गुणगान और सबसे ज़्यादा महिमा जिस तत्व का गाया गया है वह तत्व शिव तत्व है। इसलिए आप देख सकते हैं कि भगवान शिव को जगन्नाथ कहा गया, अर्थात जो जगत के स्वामी है। जितने भी लोक है 14 भुवन, ये 14 भुवन जिसके अधीन है वो स्वयं भगवान शिव शंकर है। साथ साथ भगवान शिव को सुराध्यक्ष भी कहा गया कि जो सभी देवताओं में अध्यक्ष है, सभी देवताओं का जो मार्गदर्शन करते हैं। और पुराणों की जो कथा है उसमें जो वर्णित किया गया है कि जब जब देवताओं के ऊपर संकट आए, जब जब देवताओं के साम्राज्य असुरों ने छीन लिए, तब तब भगवान शिव शंकर ने अपनी शक्ति का प्रचंड उपयोग करते हुए देवों के साम्राज्य को पुनः स्थापित किया। जब जब आपत्ति आई, भगवान शिव शंकर ने वही आपत्ति अपने ऊपर लेते हुए सभी देवताओं को सुरक्षित रखा। देवता सुरक्षित हो गए तो ऋषि मुनि सुरक्षित हुए, ऋषि मुनि सुरक्षित हो गए, वेदों की रक्षा हो गई। जहाँ वेदों की रक्षा हो गई वहाँ यज्ञ यागादि निरंतर रूप से चलते रहे, और जहाँ यज्ञ यागादि की रक्षा हो गई वहाँ यह मनुष्य जीवन के लिए अन्न पानी के चक्र की जो व्यवस्था है वो चलती रही। और उसी के कारण ये जीव सृष्टि का वहन होते रहा। और इसीलिए भगवान शिव को सुराध्यक्ष यानी देवताओं के अधिपति, देवताओं के प्रमुख, देवताओं के अध्यक्ष भी कहा जाता है। भगवान शिव का चरित्र निर्मल है। भगवान शिव का स्वभाव करुणा करने का स्वभाव है, और भगवान शिव की कृपा सभी जीव मात्र के ऊपर एक समान होने के कारण वो सबके पूजित भी है। इसलिए आप देख सकते हैं कि भगवान शिव का नाम है सुर पूजित, लेकिन केवल सुर पूजित नहीं है, असुर पूजित भी भगवान शिव है। देवता उनकी वंदना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सुर नर मुनिजन उनकी वंदना करते हैं। लेकिन जहाँ शिव पुराण का पाठ किया जाए वहाँ हमें पता चलता है कि असुरों ने भी जितने वरदान प्राप्त किए थे ये सभी वरदान भगवान शिव की कृपा से प्राप्त किए थे। इसीलिए सूर और असुर सभी के पूजित, सभी के सम्मानीय जो देवता है वह भगवान शिव है। भगवान शिव देवाधिदेव भी है, और उसका एक ही कारण है कि देव शब्द का अर्थ होता है देव यानी जो देने वाला। भगवान शिव हमें सब कुछ देते हैं। भगवान शिव पंचमहाभूत के अंदर भी प्राण देते हैं। भगवान शिव
हमें मुक्ति देते हैं, भगवान शिव हमें मोक्ष देते हैं, और मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान शिव ज्ञान भी देते हैं। इसलिए जो सब कुछ देने वाला है, जो सदा देने के लिए ही बैठा है, जिसके पास मांगने की कुछ जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी अपनी दया से जो सब कुछ दे देता है, उसे देव कहा गया है। और ऐसे देव भगवान शिव स्वयं है। इसलिए प्रदोष काल के अंदर भगवान शिव की पूजा का महत्व बताया गया है। जिसे मंत्र पाठ आता हो वो मंत्र उच्चार से पंचोपचार पूजा करे, षोडशोपचार पूजा करे, त्रिशोपचार पूजा करे, राजोपचार पूजा करे। अपने ज्ञान के अनुलक्ष्य में जैसी भी पूजा की जाए वैसी पूजा प्रदोष काल में वो कर सकता है। जिसे श्लोक मंत्र आदि कुछ नहीं आता, वो केवल भगवान शिव की स्तुति और भजन गाते हुए भी उनकी पूजा कर सकता है। वो भी जिसे नहीं आता, वो भगवान शिव के सामने बैठकर स्मरण मात्र से उसकी पूजा कर सकता है। या जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो केवल नाम स्मरण करते हुए भी भगवान शिव की आराधना कर सकता है। आप किसी भी प्रकार से भगवान की पूजा करें, लेकिन पूजा में सबसे महत्व का होता है मन। मन के भावों से जो हो जाता है उसी का स्वीकार भगवान आदिनाथ कर लेते हैं। इसीलिए सर्वपूजित जो देवता है वो देवता भगवान आदिनाथ है। लेकिन आवश्यकता है कि हम हमारे मन के साथ पूजा करें। हम हमारे तन को कार्यरत करते हुए पूजा करें। हम हमारे पास जितना भी धन है उस धन का यथा उपयोग करते हुए हम भगवान की पूजा करें। हमारी जितनी मति है उस मति के अनुसार हम पूजा करें। लेकिन पूजा करते करते अगर हो सके तो हमारे अहंकार का त्याग करते हुए पूजा करें। अब देखिए कि पूजा में साथ क्या रखना है, मन। पूजा में कार्यरत क्या रखना है, तन। मन के साथ पूजा करें, तन को कार्यरत करते हुए पूजा करें। कैसी पूजा करें? अपनी मति के साथ पूजा करें, मति के अनुरूप पूजा करें। कि किससे पूजा करें? तो अपने धन से यथा उपयोग करते हुए पूजा करें, दूसरों के धन से नहीं। लेकिन हमने जो कमाया है वह धन का यथा उपयोग करते हुए पूजा करें। ये सब साथ हो गया तो आपकी पूजा स्वीकार्य हो जाएगी। मन, तन, धन और मति, ये चार साथ में रखते हुए पूजा करनी है तो पूजा स्वीकार्य है। लेकिन इन सब के साथ अगर आपका अहंकार रहा तो वही पूजा अस्वीकार्य हो जाएगी। पूजा स्वीकार्य होने के लिए चार तत्व चाहिए, लेकिन पूजा को व्यर्थ करने के लिए एक अहंकार ही चाहिए। क्योंकि अहंकार भाव से जो आप पूजा करोगे वह पूजा समर्पित तो हो जाएगी, लेकिन वही पूजा भगवान शिव उसे स्वीकार्य नहीं करेंगे। यानी भगवान के समीप पहुंचेगी, लेकिन वह पूजा भगवान के चरणों पर नहीं पहुंचेगी। पूजा का महत्व है कि जो हम भगवान को अर्पण करें वो उसके चरणों तक पहुंच जाना चाहिए। यानी समर्पण तो होगा लेकिन उसका स्वीकार नहीं होगा।
और जब तक समर्पण का स्वीकार नहीं होता तब तक हमने जो पूजा की है यह पूजा केवल और केवल दंभ बन के रह जाएगी। इसलिए कहा गया तन मन धन और मति अनुसार पूजा करें, लेकिन इन सब के साथ जिसका त्याग करना है वह त्याग हमारे अहंकार का करे। क्योंकि जब व्यक्ति अहंकार से भगवान की पूजा करता है तब उसके सामने भगवान की मूर्ति तो होती है, लेकिन उसके मन में व्यक्ति स्वयं होता है। हम जिसकी पूजा करना चाहे, जिसके समीप पहुंचना चाहे, जो हमारा लक्ष्य होता है वो हमारे सामने होता है। कहीं और हमें जाना हो तो हमारा लक्ष्य हमारे सामने होता है। प्रति क्षण हमारे लक्ष्य में आता है कि हमें रेलवे स्टेशन पे जाना है, हमें बस स्टॉप पे जाना है, हमें ऑफिस जाना है, हमें मंदिर जाना है, हमें कहीं जाना है। जहाँ जाना है वो लक्ष्य हमारी नज़रों के सामने होता है, और जहाँ जाना है लक्ष्य के साथ साथ वहाँ जाने के लिए सतत हमारे मन में उसी का स्मरण भी रहता है। लेकिन मानो कि बीच में अहंकार आ गया तो लक्ष्य हमारे सामने है, लेकिन अहंकार सामने आ जाने के कारण लक्ष्य भले सामने है लेकिन मध्य में अहंकार आ जाने के कारण हम जहां भी पहुंचेंगे वहां अहंकार तक पहुंचेंगे, हमारे लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। लक्ष्य तक पहुंचने के जो स्मरण होते हैं वो अहंकार के अंदर ही चले जाते हैं। और इसलिए कहा गया है कि जब हम सामने बैठ के भगवान की मूर्ति रखें तो हमारा लक्ष्य होता है कि हमें उसे पाना है, और जहां पाने का लक्ष्य होता है वहां हमारे विचारों में भी उसके पाने के विचार ही होते। लेकिन मानो कि इन चारों वस्तुओं के साथ साथ अहंकार आके बैठ गया तो लक्ष्य तो सामने रहेगा, लेकिन जो लक्ष्य सामने है उसके सामने हमारा अहंकार ही रहेगा। यानी मैं पूजा करता हूं, पूजा तो करता हूं, लेकिन मैं खुद दिखाई दूंगा कि मैं पूजा करता हूं। मैं मेरे तन से पूजा करता हूं, मेरा तन दिखाई देगा, भगवान की मूर्ति नहीं दिखाई देगी। मेरी मति है, मैं वही करूंगा, तो मति तो रहेगी लेकिन सुमति साथ में नहीं रहेगी। सुमति जहां होती है वहां मति भगवान को अर्पण हो जाती है, लेकिन मति जहां होती है वहां मति खुद की ही चलती है। तो मैं मेरी मति से भगवान की पूजा करता हूं, ये भाव रहा, सुमति नहीं आएगी। मति सामने रहेगी तो अपने स्वार्थ के लिए ही पूजा होगी। सुमति होगी तो दूसरों के लिए पूजा होगी, ब्रह्मांड के लिए पूजा होगी। मति रही तो खुद के लिए पूजा होगी। मेरे पास बहुत कुछ है और मैं करता हूं, मैंने कमाए हुए धन से मैं करता हूं, ऐसी भावना जग गई तो मैंने कमाया है, मेरा धन है, वो भगवान के पास पहुंचने के बाद भी उसका नहीं होगा। मैंने दिया है, वो देने के बाद भी खुद का ही रहेगा। इसलिए जहां लक्ष्य के बीच में अहंकार आ जाता है वहां अहंकार का पहाड़ खड़ा हो जाता है, तो सामने परमात्मा बैठा है यह हमें नहीं दिखता है। इसलिए कहा गया कि पूजा करे, कुछ भी करे, लेकिन अहंकार से मुक्त होके हुए करे। क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां सब मिथ्या होता है। जहां मिथ्या सब होता है वहां ब्रह्म होता है। जहां ब्रह्म होता है वहां असत्य होता है, और जहां असत्य होता है वहां सब नाशवंत ही होता है।
इसीलिए एक अहंकार हमें नाशवंत की ओर ले जाता है। मैं हूं, ये हमारा अहंकार हमें नाशवंत की ओर ले जाएगा, हमें दृश्य की ओर ले जाएगा, हमें भ्रम की ओर ले जाएगा। लेकिन अहंकार जहां से पलायन हो गया, वहां मैं कुछ भी नहीं, यह भाव हमें शाश्वत शंकर की ओर ही ले जाएगा। इसलिए आप देख सकते हैं कि भगवान रावण की मां पार्थिव लिंग की पूजा करती थी। प्रदोष काल के समय 1000 लिंग मिट्टी के बनाती थी, उसकी पूजा करती थी और वह पूजा नदी में विसर्जित करती थी। रावण की मां कैकसी जो पूजा करती थी, आत्मभाव से पूजा थी, बिना अहंकार से पूजा करती थी। अगर रावण की मां में अहंकार होता तो रावण की मां, जो रावण सभी लोगों का सम्राट है, वो रावण की मां मिट्टी के लिंग की पूजा क्यों करती? रावण की मां सुवर्ण के लिंग की पूजा कर सकती थी, रावण की मां रत्न के लिंग की पूजा कर सकती थी। फिर भी रावण की मां में अहंकार नहीं था। वो राजा की मां होते हुए भी मिट्टी के लिंग की पूजा करती थी। एक बार रावण आया, रावण ने देखा कि मैंने सभी देवताओं को मेरे पैरों के नीचे दबा के रखा है, 14 भुवन में मेरा साम्राज्य है, मेरे पास सोने की लंका है, मेरी मां मिट्टी के लिंग की पूजा करती है। मां तू मिट्टी के लिंग की पूजा क्यों करती है? मां ने कहा मेरे भाव से करती थी। लेकिन अहंकार रावण में था और रावण ने सोचा कि मेरे पास सोने की लंका है तो मेरी मां मिट्टी के लिंग की पूजा क्यों करे, ये मेरा खुद का अपमान है। कोई देखेगा, कोई सुनेगा तो मेरे ऊपर हंसेगा कि जिसके पास सोने की लंका है उसकी मां मिट्टी के लिंग की पूजा करती है, मेरा अपमान हो जाएगा। और जहां मेरा अपमान है वहां सबका अपमान है। तो मां तू आज से ये लिंग की पूजा नहीं करेंगी, मैं जाता हूं और भगवान शिव का आत्मलिंग लेके आता हूं। देखिए, पूजा करने वाले में अहंकार नहीं है, जिसके घर में पूजा हो रही है उसमें अहंकार है। कई बार ऐसा होता है, भक्तिभाव करने वाले में अहंकार नहीं है, लेकिन जो दान करता है उसमें अहंकार होता है, देने वाले में अहंकार हो जाता है। मैं देता हूं, मैं करता हूं। जब यहां भगवान की पूजा हो तो यहां जब भगवान की पूजा होती है, मैं कुछ नहीं लाता, आप जो मुझे कुछ दे के जाते हो वही मैं भगवान पे चढ़ा देता हूं। खरीद के मैं फूल भी नहीं लाता, जो भक्त होते हैं वही लाते हैं, फूल भी लाते हैं, माला भी लाते हैं, फल भी लाते हैं, भगवान के ऊपर चढ़ाने की वस्तु भी लाते हैं, सब आप लोग लाते हो, मेरी पूजा में रख देते हो। मुझे नहीं पता किसने क्या लाया है, मैं मेरे भाव से वो चढ़ा देता हूं। मेरे में अहंकार नहीं, जो जिसका आया मैं उसे चढ़ा देता हूं। हाँ, लेकिन जिसने दिया है वो अगर बैठे बैठे सोचे कि देखो दादा जो फल चढ़ा रहा है ये सब फल मैंने दिए, समझ लीजिए रावण जैसा अहंकार, मैंने दिया, मेरी मां, मेरा राज्य। बैठे बैठे आपके मन में ये भी आ गया कि मेरे फल दादा ने चढ़ाए, मेरी माला दादा ने चढ़ाई, मेरी जटा चढ़ा दी, मेरा प्रसाद चढ़ा दिया। वहां बैठे बैठे अगर आप में मेरा हो गया, समझ लीजिए कि ये दंभ हो जाएगा। आपने जो दे दिया वो दे दिया, वो अब आपका नहीं रहा। आपने मुझे दिया, मैंने उसे दे दिया, ये सर्वस्व का हो गया। लेकिन बैठे बैठे अगर हमारे मन में ये भाव आ भी जाता है तो वहां ही हमारे मन को सतर्क कर दीजिए कि मैंने कुछ नहीं दिया,
उसने जो मुझे दिया है वही मैं वहाँ लेके आया हूँ। यही भाव से हमें पूजा को देखनी है, क्योंकि प्रदोष काल में पूजा का महत्व देखने का भी होता है। प्रदोष काल में भी नहीं, कहीं भी आप कोई भी व्रत करे, कोई भी अनुष्ठान करे, करने वाले को करने वाला है उसका तो महत्व है, वो तो करता ही है। सुनने वाले के लिए भी महत्व होता है। आप घर में पारायण करो और आप पढ़ो, आपको मिलेगा, ये महत्व है। लेकिन अगर कोई पारायण सुनता है तो सुनने वाले को भी फायदा है। आप पूजा करते हो, आपको तो फायदा है, आपका तो पहुंचता है, लेकिन जो देखता है उसका स्मरण भी वहां तक पहुंच जाता है, उसके विचार भी वहां तक पहुंच जाते हैं। कोई व्यक्ति गुप्त दान दे दे तो गुप्त दान देने वाले को भी पुण्य मिलता है। देने वाला वहां नहीं होता, गुप्त दान देके चला जाता है, पुण्य तो मिलता है, उसको भी मिलता है। तो पूजा देखने वाले को क्यों नहीं मिल सकता? पूजा सुनने वाले को क्यों नहीं मिल सकता? पूजा में प्रसाद लेने वाले को यह पूजा का फल क्यों नहीं मिल सकता? पूजा में अगर कोई बाहर से भी आए, 2 घंटे के बाद भी आए और वो प्रसाद ले ले तो भी उसे पूजा का फल मिलता है। हाँ, लेकिन प्रसाद ले और मानो कि 2 घंटे के बाद अगर वो प्रसाद का स्वाद बिगड़ गया, आपने लिया और आपको ऐसा लगा बिगड़ा हुआ है, समझ लीजिए फल मिलेगा तो बिगड़ा हुआ ही मिलेगा। पूजा पाठ में, हमारे आध्यात्म में जो भी तंत्र चलता है, ये सभी तंत्र मन का तंत्र चलता है। और इसीलिए सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी आया तो समझ लीजिए कि आपकी पूजा वहीं रुक जाएगी। आप अंधेरे में हो और रास्ता ढूंढते ढूंढते आप किसी दीवार से जाके टकरा गए, आपका सिर दीवार में टकरा गया, ऐसा आप समझ लीजिएगा। अहंकार आ गया, भगवान के चरणों में सिर नहीं जाएगा, भगवान सामने जो अहंकार रूपी दीवार है उसमें ही आपका सिर टकराएगा और उसका नुकसान आपको ही भुगतना। तो रावण ने सोचा कि मैं राजा हूं, लोग क्या कहेंगे, सबसे बुरा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोग क्या कहेंगे, मैं जाता हूं आत्मलिंग लाता हूं। रावण की मां ने कोई इच्छा नहीं की, वो गया आत्मलिंग लेने के लिए। बहुत सुंदर उसने स्तुति की, आत्मभाव से वो लीन हो गया। जब रावण ने स्तुति की तो रावण के पास कुछ सामग्री नहीं थी पूजा पाठ की, और ऐसा कहा जाता है कि अपने अंदर की हड्डियों को निकाल के उसकी वीणा बना के रावण ने शिव तांडव गाया, भगवान शिव नाचे और भगवान शिव ने उसे आत्मलिंग दे दिया। अब आत्मलिंग हाथ में आने के बाद, ये आत्मलिंग मेरा है, मैं ही लेके जाऊंगा, मेरे लंका में ही जाएगा, ये जहां मेरा भाव आने लगा, वहां कथा हमें पता है कि भगवान गणेश आते हैं और भगवान गणेश आने के बाद वो आत्मलिंग युक्ति प्रतियुक्ति से वहीं जमीन में वहीं रख दिया जाता है। तो आप देखिए, मिल गया था लेकिन घर तक नहीं पहुंच पाया, क्यों? अहंकार। इसलिए आप जो भी पूजा करो, जो भी सेवा करो, जो भी स्तुति करो, जो भी प्रार्थना करो, सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार आपके अंदर के पूरे सॉफ्टवेयर को बिगाड़ के रख देगा। या कंप्यूटर में, मोबाइल में, जब मोबाइल आप ज़्यादा यूज़ करो और ज़्यादा यूज़ करने से, मोबाइल में कुछ डाउनलोड करते रहने से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मोबाइल में वायरस आ जाता है। जब मोबाइल में वायरस आ जाए तो आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, जल्दी चालू नहीं होता, चालू भी नहीं होता और जहां आप देखते हो वहीं अटक जाता है। उसे आप कितना भी सरकाओ लेकिन वो वहां से सरकता नहीं, हैंग हो जाता है। बाद में हम रिपेयर करवाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि इसमें वायरस आ गया है, वायरस को साफ करना पड़ेगा। बस यही है मन रूपी मोबाइल में आया हुआ अहंकार। कि आपका मन तो चलता है कहीं इधर कहीं उधर, मन में जो चाहे वो आप खोज भी सकते हो, मन से पूजा में उतर सकते हो, आपकी साधना में चले जा सकते हो,
लेकिन जैसे वायरस आ गया, अहंकार आ गया, आप वहीं स्टॉप हो जाओगे। मैं कुछ हूं, वहां आप हैंग हो जाओगे, उससे आगे आप नहीं जा पाओगे। मेरे पास बहुत पैसा है, वहीं आप हैंग हो गए। पैसा बहुत हो तो क्या हुआ, अहंकार आने से आप वहीं अटक जाओगे। पैसा आ जाने से उसका उपयोग दूसरों के लिए तो नहीं हो। मेरे पास बहुत प्रतिष्ठा है, आप वहीं हैंग हो जाओगे, उससे आगे नहीं जा पाओगे। 24 घंटे उसी में आप अटके रहोगे। मेरे पास प्रतिष्ठा है, मेरे पास सत्ता है, मेरे पास कला है, मेरे पास विद्या है, मेरे पास धन है, मेरे पास सामर्थ्य है, मेरे पास रूप है, वहीं आप अटक जाओगे। पूरी जिंदगी चले जाएगी, लेकिन ये मोबाइल वहां से आगे जाएगा नहीं। ये वायरस वहीं आपको हैंग करके रख देगा। और जहां आप रुक गए, वहां आप समझ लीजिए कि पतन वहीं से शुरू हो जाएगा। जो पानी बहते रहता है वो जीवंत रहता है, उसमें कीड़े नहीं पड़ते, वो सड़ता नहीं। लेकिन जो पानी अटक जाता है उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। जिसकी वृद्धि अटक जाती है उसका विनाश वहीं हो जाता है, वो सड़ता है। अहंकार मैं कुछ हूं, वहीं आपको लाके खड़ा कर देगा। जैसे मोबाइल हैंग हो जाता है, आपका जीवन वहीं रुक जाएगा। और जहां जीवन रुक गया, समय बीत जाएगा, लेकिन जीवन जहां रुक गया, वहां जीवन, रुका हुआ जीवन मौत के समान हो जाएगा। इसलिए अहंकार को छोड़ते हुए भगवान के समीप, भगवान के चरणों तक जाने का जो सफर होता है, जाने की जो प्रक्रिया होती है, वही प्रक्रिया उसे पूजा कहते हैं, उसे प्रार्थना कहते हैं, उसे आराधना कहते हैं, उसे अर्चना कहते हैं। यह अहंकार केवल पूजा पाठ में ही नहीं, आपके सामाजिक जीवन में भी अहंकार सबसे बड़ा और सबसे पहला आपके जीवन का शत्रु है। अहंकार के भी 3 आयाम होते हैं। पहला होता है अहम, वो बीज रूप अहम। जब से हम जन्मे हैं तब से हमें अहम है, मैं, अहम। हमारा किसी ने नाम रखा या नहीं रखा, हम जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे, मैं हूं, ये तो हमारे मन में चलता ही रहेगा। अहम, प्रत्येक श्वास में अहम है। तो अहम एक निर्गुण बीज है, उसके होने की बात करता है कि मैं हूं, मैं पुरुष हूं, मैं व्यक्ति हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बालक हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं हूं। मैं हूं का अर्थ हो गया मैं हूं, यानी मेरा अस्तित्व है। जहां मैं हूं वहां अहंकार है, यानी उसे कहते हैं अहम, मैं। जब तक हम जन्मे नहीं थे तब तक मैं शब्द था ही नहीं, लेकिन जैसे हमने जन्म लिया वहां बीज आया अहम। अहम जहां बीज आता है उसके बाद शुरू होता है अभिमान। जैसे जैसे आप बड़े हो जाओ, बड़े होते हुए हम पढ़ाई करें, आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते हमारे में कौशल्य आ जाए, हमें विद्या प्राप्ति हो, हम कोई बड़े पदाधिकारी बने, हम कलाकार बने, हम संगीतकार बने, हम वैज्ञानिक बने, हम डॉक्टर बने, कुछ न कुछ आगे जाके हम बनते हैं। जो बनते हैं उसका अभिमान हो जाता है, मैं ये हूं। जब जन्मे थे तब डॉक्टर नहीं थे, जन्मजात कोई डॉक्टर पैदा हुआ, जन्मजात कोई वैज्ञानिक पैदा हुआ, जन्मने वाला कोई संगीतकार पैदा हुआ, जन्मने वाला कोई विद्वान पैदा हुआ नहीं हुआ, जन्मने वाला कोई सत्ताधीश पैदा हुआ नहीं हुआ। तब अहम था। लेकिन जब कुछ बन जाते हैं तब अभिमान हो जाता है कि मैं ये हूं, और मैं जहां ये हूं वहां मुझे मान मिलना चाहिए, पदाधिकार, पद अहंकार।
प्रतिष्ठा का अहंकार। मेरे पास ये है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया मुझे मानती है, समाज में मेरा स्थान होना ही चाहिए। इसे कहते हैं अभिमान। जो कुछ मिला वो बहुत कुछ है, ऐसा जिसने समझ लिया वो अभिमान बन गया। यानी बीज, और बीज के बाद पेड़, वृक्ष। वृक्ष होता है अभिमान। जैसे बीज वृक्ष बनता है तो वृक्ष की डालियां अलग अलग जगह पर चली जाती है, फैलती, और डालियां जब बहुत फैले तो आजू बाजू के मकान को भी लग जाती है, आजू बाजू के पेड़ को भी लग जाती है। जैसे जैसे डालियां फैलती जाए वो दूसरों को लगने लगती है। जैसे जैसे डालियां लग गई, हम सोचते हैं ये मेरी दीवार को लगती है, काट दो इसे। बस अभिमान यही कि जब अहंकार था तब मैं ही था, एक बीज था। लेकिन अहंकार में से मैं कुछ हूं, जो मेरे पास है वे बहुत कुछ, ऐसा जब लगने लगा तो समझ लीजिए कि आपकी डालियां किसी दूसरों को नड़ने लगी है, किसी दूसरे में जाके वो विक्षेप कर रही है, क्योंकि अभिमान फैलता है। और अंत में जो प्राप्त हो जाता है उसे कहते हैं अहंकार, पूरा रूप। उसे फल आते हैं, वो फल कभी मीठे नहीं होते। अहंकार का अर्थ है पूर्ण रूप। किसी वृक्ष को हम तभी पूर्ण कह सकते हैं जब वो वृक्ष फूल और फल दे। वृक्ष तब तक पेड़ कहलाएगा, तब तक वृक्ष कहलाएगा जब तक उसमें फल नहीं। लेकिन जब उसे फल आ गए तब से वो तरुवर बन जाता है, कि वो फल देने लगा है, तब से वो तरुवर बन जाता है। वृक्ष बहुत होते हैं, लेकिन छाया देने वाले, फल देने वाले, फूल देने वाले, शांति देने वाले तरुवर बहुत कम होते हैं। तो बाद में अहंकार आया तो फल लग गए। पूर्ण रूप, परिपूर्ण रूप। अहम से अभिमान, और अभिमान की जब पराकाष्ठा हो जाती है, मेरे बिना कोई नहीं, जहां हम भगवान के अस्तित्व को भी नहीं मानते, वहां अहंकार पूर्ण रूप ले लेता है। और जहां अहंकार पूर्ण रूप ले लेते, समझ लीजिए फल आ गया। अब जो फल खाएगा उसे ही पता चलेगा कि ये मीठा है या कड़वा है, क्योंकि अहंकार का फल हमेशा कड़वा ही होता है। उसके संपर्क में जो जाएगा वो अनुभव करेगा कि आदमी तो है बहुत बड़ा, लेकिन काम का नहीं है। आदमी तो है बहुत बड़ा, बोलने का संस्कार नहीं है। आदमी तो है बहुत बड़ा, लेकिन उसके पास जाके सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा। जो उसके पास जाएगा वो फल खाएगा, लेकिन ऐसा फल हमेशा कड़वा ही होता है। तो अहंकार अभिमान का पूर्ण रूप है। जैसे कोई आप चित्र बनाओ, आपने गोल बनाने के लिए आपकी पेंसिल उठाई और पेंसिल शुरू करके वापस रखी, गोल पूरा नहीं बना, उसे हमने मिटा दिया, वापस उसको बनाया। जब वो पूरा पूरा गोलाकार हो गया तब हम उसे कहते हैं कि गोलाकार बन गया। जब तक नहीं बनता तब तक उसे हम मिटाते रहते। अभिमान वहां तक अधूरा रहता है जहां तक अभिमान अहंकार नहीं बन जाता। यानी अभिमान तक संभावना है कि हम स्वाभिमान की ओर जाए। जहां तक अभिमान है वहीं से लौट आने के हमारे पास काफी सारे उपाय हैं। लेकिन अभिमान एक बार अहंकार का रूप ले लिया, बाद में वो व्यक्ति अपने आप को भगवान रूप समझने लगता है। मैं जो कहूं वो भगवान जैसा कुछ है ही नहीं, ऐसा जहां समझने लगे उसे कहते हैं अहंकार।
जितने भी राक्षस, जैसे रावण को ही ले लीजिए, तो रावण पहले कुछ नहीं, ऋषि पुत्र था, अहम था। अहम के बाद उसे सब मिलता गया, अभिमान हो गया, और जब उसका अहंकार बन गया तो रावण ने सभी देवताओं को अपने पैरों के नीचे दबा दिया, ऋषि मुनियों को कारागार में डाल दिया कि मैं ही भगवान हूं, सब मेरा है, और उसने सीता का भी हरण कर दिया। तो अहंकार जहां फैल जाता है, पूर्ण रूप ले लेता है, वहां किसी और के होने की कोई संभावना नहीं रहती। अहंकार जगह रोकने का काम करता है। जहां अहंकार हो जाता है वहां दूसरे वहां से चले जाते हैं। भगवान से भी ऊपर की जो अवस्था हमारे मन की पहुंचती है उसे कहते हैं अहंकार। और इसीलिए हमारे अध्यात्म शास्त्र ने तो कहा है कि अहंकार तक ये वृक्ष पहुंचे, वहां तक पहुंचने ही न दो। जब अहम का बीज है वहीं से उसको नष्ट कर डालो। बीज को अगर बढ़ने ही नहीं दिया, बीज को वहीं नष्ट कर दिया गया, तो अभिमान भी नहीं बनेगा, और अभिमान से अहंकार नहीं होगा तो उसका नुकसान किसी को नहीं। इसीलिए अहम रूपी बीज को ही मार दो। आपके घर में कोई दीवार हो और उसमें कोई पेड़ अचानक उग जाए तो दीवार को तोड़ देता है। हम क्या करेंगे? उसको काटेंगे और उसके मूल में एसिड डाल देंगे कि यहीं से ये अटक जाना चाहिए। अगर ये पेड़, ये बीज वृक्ष बनने लगा तो घर की दीवार को फाड़ देगा। हम एसिड डालते हैं, उसके मूल को मार देते हैं। हमारा अध्यात्म शास्त्र यही करता है कि जब अहम है तभी उसके बीज को मार दिया जाए। और इसीलिए हमारी संस्कृति में बचपन से ही भगवान के दर्शन करना ये रीत सिखाई गई कि तू जो है उसी के कारण है, उसके दर्शन कर, वो है तो तू है। हम छोटे बच्चों को क्यों दर्शन करना सिखाते हैं? भगवान के दर्शन हो, साक्षात्कार हो जाए, सिद्धि मिल जाए, इसीलिए नहीं। भगवान के दर्शन करो, भगवान है तो हम है, हमें सुखी करने वाला वो है, हमारे ऊपर कोई है, यानी अहंकार ना आए। ये भावना से हमारी संस्कृति ने सबसे पहले उठने के बाद दर्शन की प्रथा डाली। जब घर से बाहर जाओ, माँ बाप के चरण छुओ। क्यों? ये जो थे तो आप आए हो, इनको हमेशा याद रखना, बड़े बन जाने के बाद भी याद रखना, क्योंकि ये जो है इसीलिए आप आए हो। अगर इनको भूल गए तो बाद में आप किसी के नहीं हो पाओ। माँ बाप को याद रखना। हमारी संस्कृति में बच्चा जन्मता है तो उसके पीछे पिता का नाम लगता है। क्यों पिता का नाम लगता है? कि तुम्हारा नाम तभी आया जब तुम्हारे पिता थे। अगर पिता के नाम को ही तूने मिटा दिया तो तू कैसे आएगा? तो तुम्हारा अस्तित्व माँ बाप से है। माँ बाप को हमेशा याद रखना। कौन सी भी परिस्थिति हो, भगवान की भी प्राप्ति हो जाए, लेकिन जिसने तुम्हें भगवान की प्राप्ति के लिए जन्म दिया है उसे याद रखना। और इसीलिए श्रीमद शंकराचार्य सन्यासी बन गए। उनकी माता चली गई, अब उनको अंतिम दाह करे कौन? क्योंकि माता ने वचन दिया था कि मैं तुम्हें सन्यास की अनुमति दे दूं, लेकिन मेरे मरने के बाद मुझे अंतिम दाह तो तुझे ही देना पड़ेगा। वो वचनबद्ध हुए थे। सन्यास धर्म में सन्यासी कभी अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता, और इसीलिए अग्नि और सन्यासी समान माने जाते हैं। तो अग्नि का स्पर्श वर्ज्य है। सन्यासी बन गए, माँ चली गई, अब क्या? तो माँ को दिया हुआ वचन याद आया, मैं जाऊंगा कर्मकांड करूंगा। लोगों ने विरोध किया, सन्यासियों ने, कि सन्यासी बन जाने के बाद तो सन्यासी खुद का श्राद्ध कर देता है, कोई माता पिता नहीं होते, सन्यासी अग्नि को छू नहीं सकता, तो तू कैसे जाके तुम्हारी माता को अग्नि संस्कार दोगे? सन्यासी नहीं कर सकता। श्रीमद शंकराचार्य ने मन में सोचा, जिसे विरोध करना है करे, लेकिन मेरी माँ ने ही मुझे ये लायक बनाया है
कि मैं उसकी प्राप्ति कर सकूं। तो मैं जाऊंगा, अंतिम संस्कार करूंगा। वो गए, किसी ने उनकी सहायता नहीं की, कोई कांधा देने वाला भी नहीं खड़ा रहा। उस समय के समाज और धर्म के विरोध के कारण श्रीमद् शंकराचार्य ने अपनी मां को स्वयं उठाया और अपनी मां को स्वयं उन्होंने अंतिम दाह दिया। अब आप सोचिए कि जिसने पूरे संन्यास मार्ग को शिथिल होते हुए बचाने वाले, पूरे विश्व में शाश्वत सन्यासी धर्म को फहराने वाले श्रीमद् आद्य शंकराचार्य भी अपनी मां को नहीं भूले। तो समझ लीजिए कि पहले पूजा ही मां बाप की जाती। अहंकार नहीं आना चाहिए, हम ऊपर से नहीं आए, किसी के द्वारा आए। तो जिसने हमें जन्म दिया है, हम उससे भी बड़े क्यों न बन जाए, कर्तव्य के लिए वापस हमें पीछे आना पड़ेगा। तो शंकराचार्य पीछे आए, इसलिए माँ बाप का दर्शन ये भी माना गया है। प्रत्येक वृक्षों की पूजा करनी है, नदियों की पूजा करनी है, महासागरों की पूजा करनी है। क्यों करनी है? इसी ने हमें अन्न दिया है, इसी ने हमें पानी दिया है। इस भूमि के ऊपर तो हम रहते हैं, ये सब है तो हम है, हमारे होने से ये अब नहीं है। मेरी जमीन, जमीन है तो हम है। ये सिर्फ मैंने उगाए, हमने नहीं उगाए। इसमें जिसने प्राण पूरा है उसने उगाए। बाकी वृक्ष अगर मरने होते तो आपके गमले में रखे हुए पेड़ भी मर जाते, वो नहीं उगते। उसकी मर्जी है तो ये उग जाते। तो ये हमारा अहंकार नष्ट हो जाए, इसलिए हमारे वेदों ने हर जगह पे 2 हाथ जोड़ने की प्रथा पाड़ी कि वृक्षों को भी प्रणाम करो, माँ बाप को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो, पंचमहाभूता को प्रणाम करो, सबको प्रणाम करो। क्यों? आपके होने से कुछ नहीं, इन सब के होने से आप हो, पूरा जगत है। ये होता ही नहीं तो आप कहां से आए? तो अहंकार को नष्ट करने की प्रक्रिया पहले ही हम में बता दी गई। जैसे जैसे आप साधना मार्ग में आगे बढ़ोगे, शिष्य गुरु के पास जाएगा, गुरु उसको मंत्र देगा, शिष्य के पीछे गुरु का नाम लग जाएगा। संन्यास धर्म में तो यही परंपरा है कि बाद में माँ बाप का नाम चला जाता है, गुरु का नाम आ जाता है। तो जैसे हम शिष्य बने, वैसे आपके पीछे गुरु का नाम आ जाएगा। और जहां गुरु का नाम आ जाता है, वहां मंत्र आपने नहीं पाया है, उसी ने दिया है। उसी ने दिए हुए मंत्र को आप जपोगे, और उसी ने दिए हुए मंत्र को जपते 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 आपको उसको पाना है। मंत्र आपने नहीं पैदा किया है, जिसने दिया है मंत्र उसी का है। इसलिए शिष्य के पीछे गुरु का नाम होता है। रामकृष्ण परमहंस परम पद पे पहुंचे, फिर भी माता काली ने कहा कि तू मुझ तक पहुंच गया, मैं तुझे खिलाती हूं, तू मुझे देखता है, लेकिन तब तक तू मेरी गोद में नहीं बैठ पाएगा जब तक तू गुरु नहीं करेगा। तो मैं किसे गुरु करूं? गुरु भी तो तुम तक ही तो लाएंगे। तो और मैं पहले से ही आ गया हूं। तब माँ ने कहा, मैं पहले से आ गया हूं, ये मिटाने के लिए भी तुझे गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो मैं किसे गुरु करूं? जाओ, कल तोतापुरी महाराज आएंगे, उसको गुरु कर लेना, वो जैसे सिखाए वैसे मेरे पास आना। और बाद में परमहंस ने गुरु की। तो मंत्र भी हमें मिलता है किसी और से, गुरु से मिलता है, वहां भी अहंकार नहीं। और बाद में साधना विधि में अजपा जाप, अजपा जाप किसे कहते हैं? प्रति क्षण जाने वाली सांस को छोड़े, आने वाली सांस अंदर आए, वो सेकंड पे जो जाप हो वो अजपा जाप। और अजपा जाप किसे कहते हैं? बोलना नहीं है, सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान देना है, वही अजपा जाप। देखिए, आप जब सांस छोड़ोगे तो अहम ऐसी ध्वनि निकलेगी। सांस छोड़िए, अहम, और सांस आप लीजिए तो त्वम। तो जहां सांस छोड़ोगे वहां बोलिए अहम, जा रहा है, और जो आ रहा है वो त्वम, वो आ रहा है। त्वम यानी तू, इसे कहते हैं अजपा जाप। सांस अंदर, सांस छोड़े
अहम, आप करके देखिएगा उसमें अहम आएगा, तो अहम को फेंक दीजिए और त्वम को स्वीकार करिए। त्वम यानी उसको स्वीकारिए, ये होता है अजपा जाप। तो जाप भी जहां जपा जाए वहां अहंकार को फेंकने की बात की गई। अहम, अहम रूपी बीज नष्ट कर डालिए, फेंकते जाइए। जितनी सांस छोड़ेंगे उसमें आपको ध्वनि आएगी अहम, और जितनी श्वास लेंगे उसमें ध्वनि आएगी त्वम। त्वम यानी उसको स्वीकारना, अहम यानी खुद को छोड़ देना। इसे कहते हैं अजपा जाप। यह अजपा जाप अभिमान और अहंकार तक पहुंचने से पहले ही अहंकार को नष्ट करने के लिए एक साधना की एक प्रक्रिया है, जहां अहम को सांसों के द्वारा भी छोड़ दिया जाए और त्वम को अपने अंदर समा लिया जाए। उसे कहते हैं अहंकार को छोड़ने का अजपा जाप। वहाँ मंत्र चला जाता है, वहाँ सांसों के ऊपर ही अहम त्वम का जाप रहता है, उसे कहते हैं अजपा जाप। देखिए आप, हमारा शास्त्र कितना सूक्ष्म है कि हम में अहंकार ना आए, इसीलिए अहम के बीज को ही मारने की बात करती है। और जहाँ अहम का बीज चला जाए वहाँ परमात्मा और आप एक रूप हो सकते हो। अहम ब्रह्म समी, अहम ही ब्रह्म सब बन सकता है, लेकिन अभिमान में अहंकार में आके ब्रह्म समी नहीं, अहम से ही ब्रह्म समी। ये बीज अभिमान बने और अभिमान से अहंकार बने, बाद में ब्रह्म नहीं आ सकता। बाद में तो ऐसे ही हो सकता है मैं ही ब्रह्म हूं। बाद में मान की अपेक्षा, सम्मान की अपेक्षा, जिसमें अहंकार होता है वो मान की अपेक्षा करता है। और इसलिए कहा गया है कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक ऐसे जिसे मान चाहिए, कहीं भी जाए मुझे मान मिलना चाहिए, और मान न मिले तो देख लेना बाद में। ऐसे एक लोग होते हैं मानी, जिसे मान चाहिए। दूसरे लोग होते हैं कि ज्यादा कुछ मान मिले ना मिले, प्रतिष्ठा के हिसाब से तो मान मिलना चाहिए। प्रतिष्ठा के हिसाब से मान मिले तो बहुत हो गया, ज्यादा मिले ना मिले प्रतिष्ठा से तो मिलना चाहिए। इसे कहते हैं अभिमानी, कि मेरे पास कुछ है तो मुझे मिलना चाहिए, मेरे पास पद है तो मुझे मिलना चाहिए। अपने पद को दिखा के जो मान की अपेक्षा आपके पास रखे, वो अभिमानी। मानी हर जगह पे मान चाहिए, मानी में अकल होती नहीं, हर जगह पे उसे मान चाहिए। आप उसे न बुलाओ वो आपकी ओर देखता भी नहीं। वो मानी हर मिनट पे उसे मान चाहिए, मान न मिला तो देख लूंगा। अभिमानी, मेरे पास जो है उसे देख के भी मुझे मान चाहिए। जो मेरे पास है वो देख के भी मान नहीं मिले वो नहीं चलेगा, मैं दंड दूंगा। वो अभिमानी। उसके बाद मानी, अभिमानी, और उसके बाद अमानी। एक होता है अमानी, जिसको मान चाहिए ही नहीं, जो खुद को ऐसे ही समझता है मैं कुछ नहीं, और अगर मान लेगा तो भी भगवान के सामने कि मैं कुछ नहीं वो है, उसके सामने मुझे दे दीजिए। अमानी, मुझे मान नहीं चाहिए। जिसे मान की इच्छा ही नहीं, वो मान से दूर रहता हो, अमानी। लेकिन उससे भी ऊपर कौन? तो उससे भी ऊपर कहते हैं मानदी, जो मान तो चाहता ही नहीं है लेकिन दूसरों को मान देना चूकता भी नहीं, उसे कहते हैं मानदी। ये विष्णु सहस्त्र नामावली में भगवान के नाम है, अमानी मानदो। भगवान कैसा है? अमानी भी है लेकिन मानद है, मानदी है। जो अमानी होता है वो दूसरों को मान नहीं देगा, खुद भी नहीं लेगा, दूसरों को भी नहीं देगा। लेकिन अगर खुद नहीं लो तो चलेगा, लेकिन दूसरों को तो देना पड़ेगा। अतिथि आए तो अतिथि को तो देना पड़ेगा, किसी को तो देना पड़े। आप नहीं लो लेकिन समय के हिसाब से देना तो पड़ेगा। आप नहीं लो लेकिन आपका बाप आपके सामने खड़ा रह जाए तो उसके पैर तो पड़ना पड़ेगा। अमानी जो होता है वो तो वो भी नहीं करता, मैं किसी को न लूंगा न मैं दूंगा, उसका अहंकार ऐसा होता है।
लेकिन भगवान कौन है? अमानी तो है, लेते तो नहीं, मानदी भी है, दूसरों को दे देते हैं, वो होते हैं भगवान। अमानी में संत पुरुष हो सकते हैं, मानी में तो दुनिया के सभी लोग होंगे, अभिमानी जिसके पास कुछ है वो होंगे, अमानी में ज्ञानी होंगे, लेकिन मानदी में भगवान स्वयं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्रेडिट तुम लेके जाओ। भगवान ने इतनी पूरी सृष्टि बनाई, इतना जल बनाया, पानी बनाया, वही पानी को पी के उसका उपयोग करके हम जीते हैं। भगवान ने कभी लिखा कि मेड बाय भगवान? नहीं लिखा। हाँ, लेकिन आदमी ने लिख दिया ये मैंने बनाया। इतनी हवा हम ऑक्सीजन मुफ्त का लेते हैं, कभी भगवान ने कहा कि ये मैंने बनाया? लेकिन हमने कहा ये सब हमारा है। અને તમે જુઓ ભાઈ, કોરોનામાં આપણને ખબર પડી ગઈ કે આપણે ભગવાન મફત ઓક્સિજન આપતો હતો, તેને આપણે બગાડ્યો, તો પછી આપણે બધાએ ઓક્સિજનના સિલિન્ડર લેવા પડ્યા પછી બધાએ. એ ઓક્સિજનના સિલિન્ડર હતો, હું આજ તો હતું જ આપણે લઈએ છીએ, પણ આપણું સ્થાપવા માટે, આપણો અહંકાર સ્થાપવા માટે, સત્તા સ્થાપવા માટે, સામ્રાજ્ય ઊભું કરવા માટે ઓક્સિજનને આપણે બગાડી નાખ્યું. भगवान हमें इतना प्राणवायु देते हैं, ऐसा नहीं कहते मैं देता हूं, हम कहते हैं मेरे कारण तुम जीते हो। इतना अन्न भगवान हमें देते हैं, भगवान ने कभी नहीं कहा कि ये मैंने दिया है। लेकिन अगर हम किसी को कहें तो हाँ मैंने खिलाया, मैंने दान दिया, मैंने खिलाया, मैं कर रहा हूं। अगर तुमने ही किया तो हर कुछ तुमको बना देना था, हमसे बनता क्या है? हम चाहे तो भी नहीं उग सकता, हम पानी पिलाए तो भी फसल नहीं पैदा हो सकती, और नहीं पैदा होती तो भगवान को प्रार्थना करते हैं कोई कृपा करो तो आ दुकाड़ मटे, तो उसने तो कभी नहीं की। तो भगवान मानद कि मैं मान लेता नहीं, मैं तुझे मान दे देता हूं। भगवान मानद। भगवान चाहे तो महाभारत का युद्ध लड़ सकते थे, भगवान नहीं लड़े। भगवान चाहते तो सुदर्शन चक्र से लड़ सकते थे, लेकिन भगवान ने अर्जुन को लड़ाया। नहीं, मैं मान नहीं लेना चाहता, मैं तुझे मान देना चाहता हूं, तुम लड़ो। तो अर्जुन को मान मिला। राम चाहते तो रावण को मार सकते थे, लेकिन राम ने अपने साथ सबको मान देने के लिए वानरों को बुलाया, सुग्रीव को बुलाया, हनुमान को बुलाया, जांबुवन को बुलाया, उसके साथ रास्ते में जितने भी आए सबको साथ में लिया। और जब रावण मरा तब सबका सत्कार किया और क्या कहा? आप लोगों की वजह से मैं सीता को पा सका, मैं रावण को मार सका। क्यों? भगवान अकेले नहीं मार सकते थे, लेकिन भगवान ने क्रेडिट सबको दिया। इसीलिए भगवान मानदो है कि मान लेते नहीं, मान दे देते। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि जहां अहम बढ़ेगा, अभिमान बढ़ेगा, अहंकार हो जाएगा, समझ लीजिए वहां मान अपमान की रीत वहां शुरू हो जाएगी। और वहां जहां मान अपमान शुरू हुए वहां द्वेष, प्रतिशोध, ईर्षा और शत्रुता वहां पैदा हो। और जहां ये पैदा हो गया वहां समझ लीजिए कि आपके घर में भी कलह। एक छोटा घर हो, जब सब अहम में है तो एक कमरे में रहते हैं, धीरे 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 अभिमान आ जाता है तो नहीं, હવે कहीं भी करो, मैंने बीजो रूम तो बना ही जापो पड़े, बीजो जुई। बाद में अहंकार आ जाता है तो एक ही घर में 4 घर, रसोड़ा बधाना पाछा अलग थी जाए। पहले ऐसे नहीं था, सब एक साथ खाते थे, लेकिन जब अहंकार बढ़ गया तो सबके रसोई घर अलग अलग हो गए। जब अहंकार बढ़ गया तो एक ही मकान में 2 दादर हो गए, 2 सीढ़ी, और 2 सीढ़ी, और दोनों सीढ़ी भी बाहर से। घणाना घરની અંદર જો તો 2 બહારથી જ દાદરા મૂકેલા। આપણે કહે કેમ ભાઈ આટલું મોટું મકાન છે, બહારું કા દાદરા મૂકે? નહીં, સારું એમ કે ખોટું માઠાકૂટ થાય એના કરતાં તું એની રીતે ને અમે અમારી રીતે। મકાનમાં બહાર તમે સીડી મૂકો એટલે સમજ પડી ગઈ અહીંયા પાર્ટીશન છે, અહીંયા વિખવાદ છે। જે મકાનની અંદર ઘરથી દાદરો જતો હોય તો એમ કહેવાય કે વ્યવહાર છે,
પણ આ મકાનની અંદર બહારથી સીડી મૂકી એટલે સમજી જાઓ આ ઘરની અંદર ફાટફૂટ છે, કશો ને કશી ફાટફૂટ. પછી ઉપર જાઓ તો ખબર પડે એનું રસોડું જુદું, આનું રસોડું જુદું. एक ही घर और एक ही घर में अहंकार के कारण सब अलग 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 हो गया. ये जाति पाति का नशा है, अहंकार के कारण. एक ही इंसान का पोस्टमार्टम हो गया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें भी पोस्टमार्टम हो गया. ब्राह्मणों में ऊपर से नीचे तक जाति, वैश्यों में ऊपर से नीचे तक, एम भी पाछू ऊंच नीच. अमे ब्राह्मण पण ऊंचा ने एम के पेलो ते नीचो, अब एम के क्षत्रिय ते ऊंचा माना ने पेला एम के नीचा माना. एम हवे तमे विचार करो, जहाँ जग्या मળી ત્યાં ऊपर नीचे चालू थी. अपने धर्म में पोस्टमार्टम हो गया, पोस्टमार्टम से भी ज्यादा सब अलग अलग हो गया. जब तक हमारे धर्म में ये सब अहंकार, अभिमान और अहम रहेगा तब तक हमारा धर्म एकजुट नहीं हो पाएगा. तो ये अहंकार अभिमान कहां तक जाके पहुंचता है आप देखिए. तो ये अहंकार का मूल जहां विनाश हो जाता है अहम का, वहां त्वम आ जाता है. और जहां त्वम आता है वहां परमात्मा, परम शक्ति आपके अंदर ही समा जाती है. इसीलिए पूजा में जब तक आपके सामने अहम रहे आप दीवार में माथा मार रहे. अहंकार जहां चला जाए तब आपका सिर उसी के चरणों में झुकेगा. एक बार क्या हुआ कि एक ब्राह्मण था, भगवान की पूजा करता था और हर रोज पूजा करता था, मंदिर में जाता था, लोग आते थे, उत्सव होते थे. लेकिन उसका एक नियम था कि जब वो भगवान की पूजा करे, पाठ करे, कुछ भी करे, तो भगवान के शिवलिंग के सामने एक आसन लगा देता था. और वो आसन में ऐसी भावना रखता था कि मैं जो पूजा पाठ करूं वो भगवान यहाँ आते हैं और बैठते हैं. मैं जो पाठ करूं वो सुनने के लिए भगवान आते हैं. मैं जो भी कुछ करूं भगवान यहाँ आके बैठ के सब देखते हैं. ऐसी उसकी मति थी, सुमति, कि मैं जो करूं ये भगवान की जगह है, भगवान यहाँ बैठ के देखते हैं. और ऐसे ही वो अपनी पूजा पाठ करते रहता था. एक बार बहुत बड़ा मेला लगा और मंदिर का मेला था, शिवालय था. तो उसने सोचा चलो आज जल्दी जा रहा हूँ तो मंदिर में जाके भगवान का आसन लगाता हूँ और शिव पुराण महिमा का पाठ करता हूँ. उसने आसन लगाया, बैठा. उसी समय पे मंदिर के जितने भी प्रबंधक थे वो आए और प्रबंधकों ने कहा कि देखो भाई, हर रोज तू ये सब करता है, आज मत करना. क्यों? कि आज बहुत बड़े महंत आने वाले हैं और बहुत बड़े महंत यहाँ आएंगे, मंदिर में पूजा पाठ करेंगे, तू ये सब रखेगा तो वो कहाँ आएंगे, तो ये सब मत रखना, तू ऐसे ही रहना. बोले मेरा तो वर्षों का नियम है और मैं यहाँ कुछ भी रखता हूँ, उससे किसी का क्या लेना देना, आप आके पूजा कर सकते हो. नहीं नहीं, आज तुझे कुछ नहीं करना, यहाँ कुछ नहीं रखना है. उसने कहा ठीक है, जब आएंगे तब मुझे बता देना, मैं उठा लूँगा. आसन लगाया, पूजा पाठ चालू किया. मोहन जी आए, सब लोगों ने जय जयकार किया. बड़े शास्त्रों वक्ता थे, विद्वान थे. आए और बैठे और तुरंत आए और देखा ये क्या. उसने पुजारी से कहा कि ये सब तो ठीक है लेकिन ये क्या यहाँ लगा के रखा है. कहाँ, ये आसन है, मैंने व्यासराम्बर रखा है, चरमाम्बर रखा है. ये बाजट है, उसके ऊपर मैंने चरमाम्बर रखा है. यहाँ त्रिशूल है, डमरू है. मैं जो पूजा पाठ करता हूँ भगवान यहाँ आके सुनते हैं. तो हंसने लगा कि क्यों आडंबर करते हो, ऐसे कभी भगवान आके बैठते और सुनते हैं क्या? ये सब दम्भ है, बंद कर डालो, ये पैसे कमाने के लिए सब करते हो. उसने कहा नहीं नहीं, मैंने कभी पैसे कमाने के लिए नहीं किया, ये मेरी आस्था है, ये मैंने भगवान का आसन रखा और भगवान यहाँ आते हैं. मेरी पूजा खत्म हो जाए मैं अभी उठा लेता हूँ, अगर आपको नड़ता है तो. नहीं नहीं, रहने दो, लेकिन ये सब दम्भ है. अगर भगवान यहाँ आसन पे है तो उसका प्रमाण दो. तो वो सोचने लगा कि प्रमाण तो मैं कैसे दूं कि भगवान यहाँ आसन पे.
अगर तू प्रमाण दे सकता है तो मैं मानूंगा कि ये जो तू कर रहा है बराबर है, नहीं तो ये तेरा आडंबर है, ये बंद कर दे कल से। आजू बाजू के प्रबंधक भी बोलने लगे उसने कहा ठीक है, मुझे तो विश्वास है कि भगवान यहाँ आते हैं और बैठते हैं, अगर प्रमाण चाहिए तो मैं कल आपको दे दूंगा, एक दिन का मुझे टाइम दे दीजिए, मैं मेरे भगवान को प्रार्थना करता हूँ और भगवान कल आपको प्रमाण दिखाएं। तो ठीक है, देखो मुझे प्रमाण दिखना चाहिए, ये आसन है, आसन पर भगवान का प्रमाण दिखना चाहिए, ये आसन पे भगवान का प्रमाण नहीं दिखा तो तू मंदिर तो क्या हमेशा के लिए गांव छोड़ देगा। उसने कहा ठीक है। घर गया, पत्नी से बात की, पत्नी ने कहा चिंता मत करो, आपको अगर विश्वास है कि भगवान आते हैं बैठते हैं तो भगवान होंगे, उसके ऊपर छोड़ दो। उधर वो महंत वो सोचने लगे कल इसका पाखंड में बाहर सबके सामने लाऊंगा और कल लाके दिखाऊंगा कि ये पाखंड क्या होता है। इतने सालों से हम भक्ति कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिखा तो इसे क्या दिखता हो, ये सब पाखंड है। दूसरा दिन हुआ, सब इकट्ठा हुए, महंत ने कहा चलो बताओ इस आसन पे भगवान का प्रमाण है। मंदिर के पुजारी ने मन से प्रार्थना की, भगवान के आसन के ऊपर फूल रखा और भगवान को प्रार्थना की कि आइए भगवान विराजिए, मैं कथा करूँ मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरूं, पधारिए महादेव, ऐसे करके भगवान की प्रार्थना की। और हमारे शास्त्रों में तो श्लोक है कि रम्यम सुसुपदम दिव्यम सर्व सौख्य करम शुभम आसनम च मया दत्तम गृहणम परमेश्वर। ये भगवान मैं आपको एकदम रम्यम और मुलायम आसन में आपको दे रहा हूँ, पधारिए और आप विराजिए। वेदों का श्लोक है, पुरुष एवे दंगुम सर्वेद भूत यम उताम तो तशेषानो यदन्य नातिरोहति, कि हे भगवान ये जीव सृष्टि को बनाने वाले आप विराट पुरुष हैं, आप ही हमें अन्न पानी देते हैं, हम सभी के जीवन पे आपका शासन है, तो यहाँ आके आप विराजिए। ये वेदों का श्लोक वहाँ उसने रखा, मंत्र पुष्पांजलि की। बाद में मन को कहा कि मेरी ऐसी आस्था है कि भगवान यहाँ विराजे है, अब मेरी मन से ऐसी भावना है कि भगवान यहाँ ही विराजे है, अगर आपको प्रमाण चाहिए तो ये आसन को यहाँ से उठा के दिखाइए। मान गए, उसमें क्या बड़ी बात है। जैसे गए और आसन को उठाने की कोशिश की, आसन जमीन के साथ चिपक गया, जोर लगाया फिर भी नहीं निकला, और 2 आदमी को बुलाया, उसने जोर लगाया फिर भी नहीं उठा। बाद में भी वो महन का अहंकार नहीं गया और बोलने लगे तूने कुछ गलत किया है, इसे चिपका के रखा होगा, और ऐसी सब बातें करने लगे। तो जमीन के ऊपर हाथ लगाए तो जमीन से हाथ चिपक गए। महन रोने लगे कि ये क्या हो गया, उनको अपनी भूल का पछतावा हुआ। उसने कहा कि मुझे माफ कर दो और मैं यहाँ से छूट पाऊँ, ऐसा कुछ करो, मैं मान गया कि इस आसन के ऊपर भगवान है। पुजारी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अगर आप स्वयं हो तो इन्हें छोड़ दीजिए। जैसे मन से प्रार्थना की, फूल चढ़ाए, जमीन से हाथ जो चिपके थे वो छूट गए, आसन को हिलाया, आसन हिला। पुजारी महंत ने पुजारी के चरणों में शीश झुकाया और कहा कि मैं आज तक ऐसे समझता था तू दंभ कर रहा है, मैं विद्वान हूं इसीलिए शायद मैंने ऐसे सोच लिया कि मैं जितना भगवान को जानता हूं इतना तू नहीं जानता, लेकिन आज तेरे भाव को देखते हुए, तेरी सुमति को देखते हुए, तेरे मन के समर्पण को देखते हुए मैं मानता हूं कि भक्त अगर बुलाए तो भगवान कैलाश से भी उसके आसन पे आ सकते हैं। और भगवान आए और विराजे। याद्वांबरम चरमांबरम जटा जूड विलास, आसन जमाए बैठे है कृपा सिंधु कैलाश। भगवान स्वयं आए और वहाँ विराजे। हमारी अगर भावना हो, मंत्र तो है मगर मंत्र से भी अगर हमारी भावना हो तो प्राण प्रतिष्ठा भावना से भी हो सकती है। और इसीलिए भावना जहाँ रख ली
वहाँ भगवान आए, भगवान स्वयं आसन पे ऊपर विराजे। आप सबने भी अपने जीवन में, अपने हृदय में गुरुदेव के लिए भावना रखी है, तो आपके हृदय आसन के ऊपर गुरुदेव भी विराजमान है और रहेंगे। लेकिन अहंकार को छोड़ते हुए भगवान की भक्ति करे, मन से करे, तन से करे, धन से करे, मति से करे। चार को साथ लेके करे, एक को छोड़ दीजिए, अभिमान। अभिमान को छोड़ते हुए करेंगे, प्रमाण मिलेगा। और ऐसा प्रमाण मिलेगा जो प्रमाण आपके जीवन के लिए साक्षात्कार बन जाएगा। इसीलिए जब भी आप प्रदोष में पूजा करो तो प्रदोष पूजा तन, मन, धन और मति के अनुसार अहंकार का त्याग करते हुए करें। अनुष्ठान अहंकार का त्याग करते हुए करें। गुरु दरबार में आप कुछ दान धर्म करते हो, अहंकार का ध्यान करके हुए करें। जब तक आपके हाथ में पैसा है तब तक आपका है, आपने दे दिया उसका हो गया। जो भी था, जो लेके आए थे, जो घड़ा, वो घड़ा समुद्र में समा गया। अब आपका कुछ नहीं। देने के बाद भूल जाइए। अगर देने के बाद भूल जाएंगे, देने वाला बहुत कुछ आपको दे देगा। और सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जब हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं दे पाते थे, आज हमारे पास जो कुछ आता है उसमें हम दे पाते हैं। यही समझ लीजिए कि उसका प्रमाण है कि आप दो, ऐसी उसकी इच्छा है। आप भंडारे में कुछ दो, उसकी इच्छा है तो ही आप दे पाएंगे। उसने आपको देने के काबिल किया है। तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि वो देता है और हम यहाँ आके रखते हैं। तो मन से भावना करे, अहंकार को छोड़े और पूजा पाठ भक्ति भाव करे। तो मेरा मानना है परमात्मा का आसन हृदय में रहेगा और परमात्मा का शासन आपके मस्तक के ऊपर रहेगा। हृदय में आसन और सिर पर शासन हो तो समझ लीजिए कोई अनाथ नहीं, सब सनाथ बन गए। और ऐसा ही हृदय में आसन और सिर के ऊपर शासन हम सबके जीवन में नवनाथ का है, गुरुदेव का है। और वही स्थापना हम 8 तारीख के दिन शिलान्यास के रूप में गोरक्ष मच्छिंदर महादेव मंदिर के निर्माण के रूप में हम करेंगे। 8 तारीख का दिन हम सब के लिए महत्व का दिन है। जो शिवलिंग हमारे गुरुदेव ने इतने सालों तक रखे थे, वही शिवलिंग मंदिर के रूप में जीर्णोद्धार होंगे और वापस हम गोरक्ष मच्छिंदर महादेव की वहाँ स्थापना करेंगे। તમે જુઓ કે 1970ના સમયમાં એ શિવલિંગ ત્યાં સ્થાપન થયેલા. આપણે કોઈ જતું હતું, જતા હતા, પગે લાગીને આવતા હતા. કોઈને વિચાર આવ્યો આજ સુધી કે ત્યાં એક નવું પતરું નાખીએ? આપણે આપણા ઘરોમાં સ્લેબ ભરી દીધા, બધાએ સ્લેબ નાખી દીધા. તમારા 2ના 4 માળ થઈ ગયા. તમે કોઈ એમ વિચાર કર્યો કે ગોરખ મચ્છિંદર મહાદેવ છે તો ત્યાં એક પતરું નાખીએ, ત્યાં એક ટાઇલ્સ બેસાડીએ? આ તલાવતા જતા હતા અને આશીર્વાદ લઈને પાછા આવતા હતા. આપણે એક પણ વિચાર કર્યો નથી. આટલો પણ ભાવના આપણા મનમાં આજ સુધી જાગી નહીં. એ શિવલિંગની પૂજા એની જાતે જ થતી હતી. લોકો શ્રદ્ધાથી આવતા હતા અને શિવલિંગ પર બધું ચડાવી જતા હતા. ભગવાને કોઈને બોલાવવા નથી પડ્યા, લોકો શ્રદ્ધાથી આવીને કરી જતા હતા. 1970થી આ જગ્યા ઉપર શિવલિંગ હતા, ખુલ્લામાં પડેલા હતા. કોઈએ પણ આજ સુધી એવો વિચાર નથી કર્યો. આપણે એની રીતે શિવલિંગ એની પૂજા કરાવતા હતા. કોઈની તાકાત એવી નથી થઈ કે એ શિવલિંગને ત્યાંથી હટાવી શકે. સિવિલ હોસ્પિટલની અંદર જે અધિકારી આવતા હતા તે પૂજા કરતા હતા. ના, શિવલિંગ છે એને હટાવવાના નહીં, એમનું એમ રહ્યું. અને હવે તમે જુઓ કે જ્યારે એનો સમય આવ્યો અને આપણા બધાને મનમાં થયું કે હવે એનો જીર્ણોદ્ધાર કરવો જોઈએ, તો ત્યારે અમે બધું ત્યાં લેવા જવાના. એટલે ત્યાં ગામના લોકો કે જો ભાઈ એમ કે અહીંયા કરો ને તો હાચવીને કરજો, અહીંયા એમ કે હાપ રહી છે, નાગ નીકળે છે એમ કે અહીંયા. એક વખત એમ કે પેલી ઔદુંબરની એમ કે દાઢી કાપવા ગયા સિવિલ હોસ્પિટલવાળા, તો ત્યાંથી મોટો નાગ નીકળ્યો એટલે બધું છોડીને ભાગ્યા એમ. એટલે આ જે બી કહી છે ને એમ કે અહીંયા બહુ કહી છે,
દાદાને લાવો અને કરાવો, અને તમે કરી જતા હોય તો આ બધું કરો, બાકી અમે અને હાથ નહીં લગાડીએ. હવે વિચાર કરો, આ કોણે આ શાસન કોનું હતું? શાસન અને આસન આ મચ્છંદર ગોરખનું હતું બંને. આપણે તો ખાલી જતા હતા, ફરવા જતા હતા, હાથ હલાવતા જતા હતા અને માથું ધૂણાવીને આવી રહેતા હતા. આસન જમાવીને બેઠા હતા. वो કે પેલું કે ને કે ચલતા અવધૂત, बैठा अवधूत लोहे की कील, चलता अवधूत पवन की भांति. लोहे की कील જ્યાં બેઠેલા હતા ત્યાં બેઠા હતા. જેઓ કંઈ ઉખાડવા ગયું, કંઈ કરવા ગયો અને પરચા થયા, લોકો ભાગી આવ્યા હતા. અમે ગયા, હું પોતે ગયો અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે હવે જીર્ણોદ્ધાર કરવો છે. તો અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, વિધિ કરીએ છીએ. હવે અહીંયાથી તમારા પોતાના ઘેર પાછા ચાલો. ત્યાં જ્યારે ખોદવા બેઠા તો બધા જ કહેવા માંડ્યા કે આ શિવલિંગ નીકળતા વાર લાગે, એમ કે બધું એમ કે બહુ વ્યવસ્થિત છે, આમાંથી આમ નીકળે એવા નથી, એમ 1 કલાક તો પાકો. હું બેસું છું, ખાવું કંઈ નથી, શિવલિંગને લઈ જઈને ઘરે જઈને પછી જ જમશું. ત્યાં જઈને જોયું, ભસ્મ લીધું, શિવલિંગ ઉપર નાખી દીધું. ચાલો હવે મેં ચાલુ કરો. હજુ આવીને બેસું છું, 5 જ મિનિટમાં પેલા અંદરથી બહુ મળી, દાદા નીકળી ગયું એમ કે, તરત જ નીકળી ગયું એમ કે. હલાવીને જોયું, સીધું સરળ હાથમાં આવી ગયું. મચ્છંદ્રનાથ પહેલાં લઈ લીધા. મેં પહેલાં જ કીધું, મેં કહું પહેલાં આ મચ્છંદ્રનાથને અહીંયાથી કાઢી, એમને હલાવો એટલે ગોરખનાથ જાતે નીકળે. બાકી પહેલાં ગોરખનાથ પાસે ગયા તો આ મચ્છંદ્રનાથ પણ નહીં નીકળે ને આ પણ નહીં નીકળે. પહેલાં ગુરુને મનાવવા પડે, પછી ચેલો તો આપને એની પાછળ આવશે. લઈ લીધા. હાથમાં જ્યારે શિવલિંગ ઉઠાવ્યું, તમે માનો નહીં, 5 થી 7 કિલોનું આ વજન હતું. હાથમાં પકડાઈને 2 શિવલિંગ લીધા, ગાડીમાં મૂકી દીધા, અહીંયા લાવીને મૂકે. હવે તમે વિચાર કરો, આ જ આસન અને આ જ શાસન આટલા વર્ષોથી ત્યાં હતા, કોઈ ઉખાડી શક્યું? આ એનું આસન કહેવાય. અને એ જ એનું શાસન કે હવે ત્યાં સ્થપાશે અને આવા ડાંગની અંદર ધર્મ ઉત્થાનના કાર્યો એ જ મંદિર હેઠળ જોરદાર ચાલુ થશે. તો હવે આપણે બધાએ ભેગા થઈને 8 તારીખે શિલાન્યાસમાં આવવાનું, બધાએ જ આવવાનું. ઘણા વિચાર છે ત્યાં જઈને કરીએ, હું કંઈ કરવાનું નથી, હાથ હલાવતા આવવાનું છે અને પછી પગે લાગીને જે પણ ત્યાં બનાવ્યું હોય એ મહાપ્રસાદ ખાઈને નીકળી આવવાનું છે. પણ ફરજ છે બધાએ ત્યાં આવવાનું. આપણી ધરોહર છે, નાથપંથની ખુમારી છે, એ નાથપંથની ખુમારી આપણી અંદર આપણે બતાવવાની. બધાએ ભેગા થવાનું, ગામે ગામ જેટલા પણ ભક્તો હોય. 8 તારીખના દિવસે સવારે 10 વાગે ત્યાં ભેગા થઈ જજો બધા. અને આવાની અંદર અલગ જગાવવાની છે આપણે બધાએ. ત્યાં શિલાન્યાસ કરશું અને શિલાન્યાસ પછી ત્યાં મંદિરનું નિર્માણ થશે. જે કોઈની ઈચ્છા કંઈ આપવાની હોય તે આપે, મારે માંગવું નથી. હું તમને ખાલી ઇન્ફોર્મ કરું છું. આપવું હોય આપજો, તમે ન આપશો ચિંતા નહીં કરતા. જેના મંદિર છે ને એ આપણા કરતાં વધારે પાવરફુલ છે, બનાવી જ લેશે ગમે તે કરી. એની વ્યવસ્થા એ જાતે જ કરે છે. એ મહાશક્તિ છે, એની આગળ કોઈનું ચાલે નહીં. પણ એક વસ્તુ ખરી, તમે ઈચ્છા રાખશો તો તમને માધ્યમ બનાવશે. એના પર કોઈનો ઉપકાર થશે નહીં. અમે બનાવીને થઈ ગયું એ કોઈના કહે ને કે સાહબ સબકા બાપ હૈ કિસી કા બેટા નહીં, બેટા હો કે અવતરે વો સાહબ નહીં. કે આ છે ને જે મહાશક્તિ છે એ આપણા બધાની માથા ઉપર છે, આપણા બાપના બાપ છે. બાપના બાપ ઉપર કોઈ ઉપકાર કરવા નહીં જઈ શકે. એનો ઉપકાર આપણી ઉપર છે તો આપણે બધા શાંતિથી અહીંયા બેઠેલા છે આજે. એ ઉપકાર એ કરે છે ત્યાંથી. એટલે ત્યાં આવો ને તો ઉપકાર કરવા નહીં આવવાનું. દાદાએ કીધું એટલે આવ્યા, કંઈ ઉપકારની જરૂર નહીં મળે, ઉપકાર કરવાનો જ નહીં. દાદાએ કીધું એટલે અમે આપીએ. તમારે આપવાથી કંઈ થવાનું પણ નથી. એની મરજી છે તો જ થાય છે. બાકી અત્યાર સુધી કંઈ કરી શક્યા કોઈ? એક કાંકરી બી ઉખેડાઈ, ખાલી ઝાડ કાપવા ગયા ને બધા નીકળી ગયા. કારણ કે ત્યાં નીકળ્યો એમ કે મોટો નાગ, આ તો એમ કે અહીંયા અમને ભારી પડી જાય, એમ કે આ જ શેષ નાગ, આ જ સત કહેવાય તાનો.
એટલે આપણા થવાથી કંઈ થવાનું નથી, પણ આપણે બધા નાથપંથી છે, બધાએ પોતાની ખુમારી બતાવવાની. મચ્છેન્દ્રનાથ અને ગોરખનાથના નામ પર આપણા જીવનના તમામ કામ થયા છે અને આપણા ગુરુદેવે એનું સ્થાપન કર્યું છે. તો હવે જીર્ણોદ્ધારનો સમય આવ્યો છે, બધા એની પાછળ લાગી જવાનું છે. 8 તારીખે સવારે 10 વાગે બધા આવે. અહીંયાથી પત્રિકા મળે કે ન મળે, પત્રિકા મળે તો સત્સંગ મંડળમાં બધે વેચી દેજો, બધા ફરીને. પણ 8 તારીખે સવારે 10 વાગે બધાએ આવા ગાદી ઉપર બધાએ ભેગા થવાનું. ત્યાં બધા જ આપણે ભેગા થશું, જય જયકાર કરશું અને મંદિરનો શિલાન્યાસ ત્યાં કરશું અને મંદિરનું નિર્માણ ત્યાં ભવ્ય નિર્માણ થશે. તો દરેક જણાએ ત્યાં આવવા માટે પોતપોતાનું સેટિંગ કરવાનું અને બધાએ આવવાનું છે. 8 તારીખનો દિવસ ઐતિહાસિક દિવસ છે. 1970 પછી ફરી પાછો આ દિવસ આપણી વચ્ચે આવ્યો છે. ઐતિહાસિક સમય, ઐતિહાસિક દિવસ, ઐતિહાસિક ઘટના, અલૌકિક ઘટના, એનો ભાગીદાર બનવાનો સમય 8 તારીખનો છે. તો દરેક જણા ત્યાં આવે અને આ ઉત્સવની અંદર તનથી મનથી ધનથી સહભાગી થાય. શિલાન્યાસના કાર્યક્રમમાં જેણે બેસવું હોય તે ત્યાં નામ તમારું નોંધાવી દેજો. જે પણ જોડું બેસે, આપણે 3000 રૂપિયા નક્કી કર્યા છે. 3000 રૂપિયા ભરો અને હાથ પગ અને હૈયું લઈને આવવાનું અને બેસી જવાનું. પછી મનથી આવીને બેસી જજો. બધી સામગ્રી ત્યાં છે. શિલાન્યાસમાં પૂજામાં બેસો અને શિલાની પૂજા કરો અને એ પૂજા કરી એટલે સમજો કે આમાં તમારો ભગવાનની કૃપાથી આ સહભાગ. ત્યાં મૂર્તિઓ પણ મુકાશે, એ સમય આવીએ જાહેર કરશું. એના માટે પણ યોગદાન આપવું હોય તો આપે, કોઈએ ભંડારા માટે યોગદાન આપવું હોય તો આપે, સ્વેચ્છાક. કોઈએ કંઈ નહીં કરવું હોય તો કંઈ વાંધો નહીં, એમ જ આવી લેજો. તમે કંઈ કરો કે નહીં કરો, ગોરખનાથ અને મચ્છેન્દ્રનાથ એ જાતે જ બધું કરી શકે એમ છે, માટે એની રીતે બધું કરશે. પણ જો મનમાં થતું હોય તો સેવા કરી શકો છો. તો બધા જ 2 હાથ જોડીને પ્રદોષ કાળે ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. हमारा अंतर में तुम्हारू आसन, हमारे अंतर में आपका आसन है और हमारे मस्तक पर आपका शासन है. जहाँ आसन और शासन आपका हो वहाँ यह कलयुग के घोर समय में भी हम अनाथ नहीं, आपकी कृपा से हम सनाथ बन चुके हैं. तो हम सभी सनाथ है, तो हमारे रक्षा करे, हमारे जीवन को शांति प्रदान करे, हमें समृद्धि और संपत्ति दे कि हम सुखी बने और धर्म के कार्य में हम हमारी संपत्ति को धर्म के कार्य में दान के रूप में हम लगाए. ऐसी हम उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, बार बार प्रार्थना करते हैं. और ऐसे कार्य में हमारा सहयोग निरंतर रहे, ऐसी हमें शक्ति मिले, ऐसी भी हम कामना करते हैं. 25 बार गुरु मंत्र बोलते हुए भगवान आदिनाथ के चरणों में, भगवान गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ महादेव के चरणों में हम बार बार नमन करते हैं. 25 बार गुरु मंत्र बोलते हैं. गोरक्ष झालंधर चरपटाश्च अड़वंग कानीफ मच्छेन्द्रराज चौरंगी रेवाणक भर्तुवरी सज्ञा भूम्यांब भुवननाथ सिद्ध. जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ, जय जय मच्छेन्द्र समर्थ. सारनाथ महाराज की जय, छोटे दादा की जय. आज का भंडारा अमरोली सत्संग मंडल एवं मीनाक्षी बेन मैसूरिया की ओर से है, जिन्होंने आज के भंडारे में योगदान दिया है. भगवान महादेव को प्रार्थना करता हूँ कि सबके हृदय में आसन और सबके मस्तक पे उसका शासन रहे और सबकी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ. आज के महाप्रसाद में दाળ ભાત, દૂધી ચણાનું શાક, કેરીનું અઠાણું, ખમણ અને જલેબી છે. બધાએ જ આજનો ભરપેટ પ્રસાદ જમવાનો અને જમીને એટલી જ પ્રાર્થના કરવાની કે આ પ્રસાદના અમે ભાગીદાર બનીએ છીએ, તો આ સેવા કાર્યના તન મન અને ધનથી અમે ભાગીદાર બનેલા રહીએ, એવી प्रार्थना भगवान ने बधाए करवानी. तो आज के गुरुवार पर बस इतना ही. सभी भक्तों को मेरा जय उदूत.
जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश।